Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Today we will start annuity. So, right, definition of annuity, later I will explain that. What is annuity? An annuity is a series of payments at fixed intervals for fixed number of years or lifetime. Mode of payments of annuity can be monthly, quarterly, half yearly or yearly. Annuity means जो हम लोग पेमेंट करते हैं किसमें इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट कभी मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है या फिर ईयरली हो सकता है। एन्युटी मतलब क्या होता है? पेमेंट जो हम लोग इंस्टॉलमेंट में भरते हैं उसको हम लोग एन्युटी बोलते हैं। एन्युटी का दूसरा नाम क्या है? पेमेंट है। ओके, अभी लिखो 4 parties to an annuity. 4 parties to an annuity. Four parties to an annuity. First is annuitant. First is annuitant. 4 parties to an annuity. Annuity means your payment in simple language. Okay. First is annuitant. Write it down. A person who receives an annuity is called the annuitant. A person who receives an annuity is called the annuitant. Second one is issuer. A company, usually an insurance company that issues an annuity, is known as issuer. A company, usually an insurance company that issues an annuity is known as issuer. Done. Third one is owner. An individual or an entity, that buys an annuity from the issuer, an individual or an entity that buys an annuity from the issuer of the annuity is known as owner. Is known as owner. Fourth one is beneficiary. Fourth one is beneficiary. A person who receives a death benefit from an annuity. A person who receives a death benefit from an annuity at the death of the annuitant. At the death of the annuitant is known as beneficiary. A person who receives a death benefit from an annuity at the death of the annuitant is known as beneficiary. Second topic is types of annuity. Types of annuity. Your first one is immediate or ordinary annuity. Immediate, its second name is ordinary or ordinary annuity.
The immediate annuity commences. The immediate annuity commences immediately after the end of the first income period. The immediate annuity commences immediately after the end of the first income period. Full stop. When the payments are made at the end of the period. When the payments are made at the end of the period is known as immediate or ordinary annuity. Second one is annuity due. B is annuity due. When the payments are made at the beginning of the period is known as annuity due. When the payments are made at the beginning of the period is known as annuity due. Types of annuity कौन से? Okay. Annuity due. When the payments are made at the beginning of the period. सी इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, सपोज आपका पेमेंट मंथ के एंड में हो रहा है और वो उसमें क्या होगा, वो पेमेंट अगर आप लोग मंथली कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, हाफ ईयरली कर रहे हैं या ईयरली कर रहे हैं, तो वो क्या रहेगा तुम्हारा इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी। इमीडिएट एंड ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब हम लोग पेमेंट क्या करते हैं, मंथ के एंड में पेमेंट करते हैं, और एन्युटी ड्यू मतलब हम लोग पेमेंट जो है वो हम लोग मंथ के स्टार्टिंग में करते हैं। सो दिस इज द ओनली मेन डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट एंड एन्युटी ड्यू। पेमेंट जो हम लोग मंथ के एंड में करेंगे वो इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी रहेगा, और जो हम लोग मंथ के स्टार्टिंग में करेंगे वो हमारा एन्युटी ड्यू रहेगा, समझा। और तीसरा है तुम्हारा डेफर्ड एन्युटी, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम्हारे एक्सरसाइज 2.2 इज टोटली बेस्ड ऑन इमीडिएट एंड एन्युटी ड्यू। और एक बात, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कौन सा पेमेंट हो रहा है, इधर इट इज इमीडिएट और एन्युटी ड्यू, तो हमेशा हमको इमीडिएट या ऑर्डिनरी एन्युटी ही हमको कंसिडर करना है, ठीक है, क्लियर है। एन्युटी का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी मतलब व्हेन द पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो होता है तुम्हारा इमीडिएट एन्युटी। एन्युटी ड्यू मतलब व्हेन द पेमेंट्स आर मेड एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, जब मंथ के स्टार्टिंग में ही हमारा कोई इंस्टॉलमेंट जा रहा है तब हम लोग उसको एन्युटी ड्यू बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि विच टाइप ऑफ एन्युटी, सो वी हैव टू ऑलवेज कंसीडर इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Now write present value of an annuity. Write present value of an annuity. Present value of an annuity. The present value of an annuity is the current value of future payments. The present value of an annuity is the current value of future payments from an annuity. The present value of an annuity is the current value of future payments from an annuity given a specified rate of return, given a specified rate of return or discount rate.
The present value of an annuity is the current value of future payments from an annuity given a specified rate of return or discount rate. Present value of an annuity, suppose if I am investing in a bank 5,000 per month, so that 5,000 is my present value of an annuity. Understood? ये होता है present value of annuity का meaning. Suppose if I am investing 5,000 for some in some insurance company or in a bank, तो वो 5,000 क्या है मेरी present value of an annuity, वो मेरा payment का present value है. Okay, now write it down. Future value of an annuity. Future value of an annuity. It is the accumulated value. It is the accumulated value or deposited value or collected value. It is the accumulated value or deposited value or collected value of all annuities over a period of time with compounded rate of interest. With compounded rate of interest. It is the accumulated value or deposited value or collected value of all annuities over a period of time with compounded rate of interest. Okay, suppose if I am investing 10,000 per month in a particular bank, so at the end of 1 year, how much amount I will get? 1,20,000, right? Plus फ्यूचर वैल्यू मीन्स क्या होगा, उसमें मेरा कुछ ना कुछ कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी मुझे मिलेगा. जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो पर्टिकुलर बैंक का, वो मुझे उसमें एड ऑन मिलेगा. तो मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या क्या होगी? प्रिंसिपल सम प्लस कंपाउंडेड इंटरेस्ट. फ्यूचर वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड वैल्यू और कलेक्टेड वैल्यू और डिपॉजिटेड वैल्यू. अंडरस्टूड? फ्यूचर वैल्यू में क्या होगा? हमको इंटरेस्टेड अमाउंट भी मिलेगी. प्रेजेंट वैल्यू में मीन्स जो मेरा पेमेंट जा रहा है एवरी मंथ वो पर्टिकुलर थिंग में, वो मेरा प्रेजेंट वैल्यू रहेगा. फ्यूचर वैल्यू में मीन्स सपोज इफ आई एम इन्वेस्टिंग 10,000 पर मंथ इन अ पर्टिकुलर बैंक, सो एट द एंड ऑफ ईयर मुझे क्या मिलेगा? 1,20,000 प्लस मुझे कुछ ना कुछ कंपाउंडेड इंटरेस्ट वाली अमाउंट मिलेगी. सो मेरा 1,20,000 इज माय प्रिंसिपल सम प्लस कंपाउंडेड इंटरेस्ट, मतलब जो भी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा बैंक का वो मुझे मिलेगा. मतलब मुझे 1,20,000 से ज्यादा अमाउंट मिलेगी, तो वो अमाउंट को हम लोग बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू और डिपॉजिटेड वैल्यू और कलेक्टेड वैल्यू. ठीक है, इसके 3-4 डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है. समझा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्युटी, टाइप्स ऑफ एन्युटी, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी एंड व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी? सबको समझा? यस मैम. एन्युटी मीन्स, सी जो लेट ज्वाइन है मैं उनके लिए फिर से रिपीट कर रही हूँ. एन्युटी मीन्स पेमेंट. जो हम लोग सीरीज ऑफ पेमेंट्स में फॉर अ पर्टिकुलर थिंग के लिए हम लोग कुछ देते हैं, वो हमारी एन्युटी होती है. उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या है? इट कैन बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ annuity, but in your syllabus you have only 2 types of annuities, that is immediate or ordinary annuities, and second one is annuity due. Immediate or ordinary annuity means when the payment are made at the end of the month. ठीक है, जब मंथ के एंड में कोई पेमेंट हो रहा है, रेगुलर पेमेंट, इधर वो मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, उसको हम लोग इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी बोलेंगे. एन्युटी ड्यू मीन्स व्हेन द पेमेंट आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ योर पीरियड. ओके, जो मंथ के स्टार्टिंग में कोई पेमेंट हो रहा है उसको हम लोग एन्युटी ड्यू बोलेंगे. अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मीन्स अगर हमारे कोई वैल्यू जा रही है तो वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, उस पे हम लोग कुछ एड ऑन नहीं मिल रहा है. एड ऑन ना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है. एंड और दूसरा है तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू मीन्स मैंने अभी
एग्जाम्पल दिया कि सपोज इफ आई एम इन्वेस्टिंग 10,000 पर मंथ इन अ बैंक, तो मंथ के एंड, सो ईयर के एंड में मुझे क्या मिलेगा, 1,20,000, राइट, सॉरी, हाँ, 1,20,000 प्लस मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड अमाउंट मिलेगा, तो वो टोटल जो रहेगा वो मेरी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी रहेगी। समझा? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now write formula. इफ पॉसिबल ना ऐसा पार्टीशन करो, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में क्या डिफरेंसेस है मुझे वो बताना है। ओके, फॉर्मूला फॉर इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी। Here formula for annuity due. Okay, first formula है A is equal to C upon I 1 plus I whole raised to power n minus n, where A is your, लिखो, where A is your accumulated value or deposited value, where A is your accumulated value, accumulated or deposited value. Okay, C is your annuity, that is your payment जो जा रहा है every month, half yearly, quarterly. Okay, N is your number of period or number of period और period of installments जो होगा, sorry, period of investments, not installments. Okay, and I is your R by 100, and R is your, where R is your rate of interest, where R is your rate of interest. Done? Done? Shall I rub this A, B, N, R? Yes, ma'am. Second, this one is the formula for accumulated value. A is for accumulated value, right? Now the present value is given by P is equal to C by I in bracket 1 minus 1 plus I whole raised to power n, where P is your present value, means principal sum. P is your present value of annuity, और प्रिंसिपल सम, ठीक है। C is your annuity, I is your R by 100, N is your period of investment, जो सब सेम है। ओके, आप लोगों ने कौन से लिंक से ज्वाइन किया है? ये वाला क्लास जो मैम ने भेजा है अगस्त मंथ का, वही है ना? हाँ मैम। Yes, ma'am. प्लीज मुझे कोई व्हाट्सएप करो ना, क्योंकि एक एक जो है वो रिकरिंग मीटिंग में ही बोल रहा है। प्लीज मुझे वो लिंक व्हाट्सएप करो ना प्लीज। होल्ड ऑन।
Thank you, everyone. Okay, so P is equal to C upon I in bracket 1 minus 1 plus I raised to power n, where C is your annuity, P is your present value of annuity और principal sum, I is equal to R by 100, जो मैंने यहाँ पे लिखवा के दिया है सेम वैसा ही है. C is your annuity, N is your period of investments. Now your third is relation between, लिखो यहाँ पे relation between the present value, relation between the present value, accumulated value, relation between the present value, accumulated value and the annuity. It is given by 1 by P is equal to, 1 by P minus 1 by A is equal to I by C. Where I is equal to क्या है? Where I is equal to R by 100. Okay. Now formula for annuity due. First है accumulated value. Accumulated value is denoted by A dash. Okay. इसका formula देखो C upon I in bracket ये सब same है 1 plus I whole raised to power n minus 1. सिर्फ C को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 1 plus I. Where A is your क्या होगा accumulated value of annuity due, C is your annuity, N is your number of investments, I is equal to R by 100. सब वो सेम रहेगा. सिर्फ यहाँ पे accumulated value for annuity due हम लोग A dash से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे accumulated value for immediate और ordinary annuity को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं. अंडरस्टूड. डिफरेंस क्या है फॉर्मूले में? सिर्फ हमने एन्युटी को किससे मल्टीप्लाई किया है 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई किया है. इसलिए मैंने बोला है कि थोड़ा पार्टीशन करो ताकि बहुत जल्दी समझ में आता है कि डिफरेंस क्या है दोनों एन्युटी में. सेकंड है तुम्हारा पी डैश. पी डैश मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू. पी डैश इज गिवन बाय ये वाला फॉर्मूला लिखो. क्या है तुम्हारा सी बाय आई इन ब्रैकेट 1 minus 1 plus I, it's minus 1, this one is minus n, it is minus n, minus n. यहाँ पे भी c को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 1 plus I. प्लीज ये सब तुम लोग ठीक करो. ये दिस इज माइनस n है. और थर्ड क्या होगा तुम्हारा? थर्ड भी वैसा ही है 1 अपॉन p डैश माइनस 1 अपॉन a डैश इज इक्वल टू I अपॉन c इंटू क्या आएगा तुम्हारा 1 प्लस I. डिफरेंस पता चला फॉर्मूले में? अगर ये भी तुम्हें लर्न हो गया तो C का क्या करना है तुमको 1 प्लस I करना है. दैट्स इट. और कुछ नहीं करना है. डन. डन. Yes, ma'am. Now write it down. Some important points. Point 1. If there is no mention of the type of interest, if there is no mention of the type of interest, then it is assumed that if there is no mention of the type of interest, then it is assumed that the interest is compounded per annum. If there is no mention of the type of interest, then it is assumed that the interest is compounded per annum.
Second point, if payments are made half yearly, then R is replaced by R by 2. Then R is replaced by R by 2. And N is replaced by 2N. If payments are made half yearly, that is twice per year, okay? Then R is replaced by R by 2 and N is replaced by 2N. Third point, if payments are made quarterly, that is four times per year, then R is replaced by R by 4 and N is replaced by 4 into N. Fourth point, if payments are made monthly, then R is replaced by R by 12 and N is replaced by 12 into N. And N is replaced by 12 into N. Done? Yes, ma'am. ओके एक्सरसाइज 2.2 के बहुत सारे आंसर्स जो है तुम्हारे बुक में रॉन्ग दिए हैं ओके पीछे वाले जो आंसर्स है एक्सरसाइज 2.2 के ब्लंडर्स किए बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग है ओके नाउ फर्स्ट फाइंड द एक्यूमुलेटेड फ्यूचर वैल्यू हमको क्या निकालना है एक्यूमुलेटेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹8,000 फॉर 3 years एट इंटरेस्ट रेट 8% कंपाउंडेड एनुअली अभी यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली बोला है मतलब क्या है अगर कोई मेंशन नहीं है टाइप ऑफ इंटरेस्ट तो मतलब हमने अज्यूम किया है कि ये लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि कंपाउंडेड एनुअली ओके और यहाँ पे कोई मेंशन किया है क्या कि कौन सा है एन्युटी वेदर इट इज इमीडिएट और ऑर्डिनरी है या फिर एन्युटी ड्यू है ऐसा कोई मेंशन किया है मेंशन है यहाँ पे इज इट मेंशन्ड और नॉट मेंशन है कि नहीं है नॉट मेंशन मैम हाँ तो जब मेंशन नहीं है तब हम लोग कौन सा लेते हैं immediate annuity or ordinary annuity okay so exercise 2.1 now see find the accumulated future value मतलब हमको a वाला निकालना है a is for your accumulated ठीक है value of annuity rupees 800 तो मतलब c is equal to 800 है n is equal to 3 year है और rate of interest r is equal to 8% है okay c is equal to कितना दिया है तुम्हें exercise 2.2 first here c is rupees 800 n कितना है 3 years r is your 8% per annum ओके और दूसरा कुछ गिवन दिया है जो क्यूब में है क्या है गिवन 1.03 का क्यूब कितना है 1.2597 1.08 क्यूब कितना है तुम्हारा 1.2597 ओके सो यहाँ पे i इज इक्वल टू कितना होगा r अपॉन 100 ओके सबसे पहले तो आई विल राइट फॉर्मूला a इज इक्वल टू कितना होता है a इज इक्वल टू c बाय i इन ब्रैकेट 1 प्लस i होल रेज टू पावर n माइनस 1 ओके वेयर i is equal to r by 100 so i हम लोग कैसे निकालेंगे r is given I is equal to R by 100. That is R is your 8. 8 upon 8% दिया है हाँ 8. So 8 upon 100. So that is 0.08. So your I is 0.08. I क्या था तुम्हारा R upon 100. Now it is an immediate or ordinary annuity. So A is equal to C by I in bracket 1 plus I whole raised to power n minus 1.
अभी जब फॉर्मूला लगाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो गिवन दिया है ये हमको क्यों दिया है गिवन। ओके, a इज इक्वल टू व्हाट इज योर c इज योर 800 अपॉन i की वैल्यू कितनी है 0.08 इंटू 1 प्लस i की वैल्यू कितनी है अगेन 0.08 होल रेज टू पावर n इज योर 3 माइनस 1। सो a इज इक्वल टू इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 8। अभी क्या होगा 1.08 होल रेज टू पावर क्यूब माइनस 1। अभी 1.08 क्यूब की वैल्यू कितनी है 1.2597। सो a इज इक्वल टू 1234 डिवाइडेड बाय 8 1.2597 माइनस 1। So a is equal to 1234 into 0.2597. So your final answer will be, so your accumulated value, future value कितना होगा तुम्हारा 10,000 into 0.2597. So a is equal to 2597 1234 तो कितना आ गया a is equal to रुपीज 22597। तो तुम्हारा accumulated future value, therefore accumulated future value of annuity is rupees 2597। अंडरस्टूड। इसलिए हमको ये गिवन दिया है और तुम्हें हमेशा ये गिवन दिया ही रहेगा। और जब प्रॉब्लम में मेंशन नहीं है कि कौन सी एन्युटी है, एन्युटी ड्यू और इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी, सो ऑलवेज कंसीडर इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी। समझा? अभी इसका आंसर देखो तुम्हारा क्या दिया है। कितना दिया है 2100 ना, 21,000 दिया है ना, तो वो गलत है। ठीक है, अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, ma'am. ये बहुत इजी है ये वाला एन्युटी। अभी क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन इन्वेस्टेड रुपीज 5,000 एवरी ईयर इन फाइनेंस कंपनी। सो 5,000 क्या हो गया तुम्हारा सी हो गया। दैट ऑफर्ड हिम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 10% पर एनम। सो आर इज योर 10% पर एनम एंड एन इज योर 4 इयर्स। चलो मुझे सेकंड करके बताओ, मैं गिवन लिख के दे रही हूँ, मुझे सेकंड बताओ कैसे करोगे। दिया है क्या उन्होंने कुछ कुछ की कौन सा एन्युटी है, इधर इट इज इमीडिएट और एन्युटी ड्यू दिया है। C is equal to is your rupees 5,000. Okay, N is your 4 years. R कितना है तुम्हारा 10% पर annum। तो I is equal to कितना हो जाएगा R upon 100, that is 10 upon 100 is equal to कितना 0.1। और गिवन क्या दिया है तुम्हें, गिवन क्या दिया है 1.1 होल रेज टू पावर 4, कितना दिया है 1.4641। सो क्या है यहाँ पे कौन सा एन्युटी मेंशन है, इधर इट इज एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी और इमीडिएट नहीं दिया है। सो व्हाट वी विल कंसीडर इमीडिएट एन्युटी, देयरफॉर इट इज एन इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी। तो क्या होगा, हमको क्या निकालना है, what is the amount accumulated। so a is equal to c by I in bracket 1 plus I whole raised to power n minus 1। can you solve this and tell me the answer। चलो, c is your 5,000। okay, c is your 5,000, I is your 0.1, 1 plus 0.1 whole raised to power 4 minus 1, this value is given is 1.4641। बताओ कितना आएगा।
23205 is the answer. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 23205. Harshal, check your answer, beta. Your answer is wrong. You have made some mistake in calculations. Question 3. Find the amount accumulated after 2 years if the sum of rupees 25,000 is invested every 6 months. अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवा के दिए थे ना, वो थोड़ा रीड करो. जो मैंने ये वाला लिखवा के दिया था. If payments are made half yearly, then मतलब that is twice a year, then R is replaced by R by 2 and N is replaced by 2 into N. तो इसमें हम लोग वो वाला पॉइंट यूज करेंगे. यहाँ पे क्या बोला है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली. जब कंपाउंडेड कौन सा है, कौन सा ईयरली बोला है, अगर नहीं है तो हम लोग वो एनुअली कंसिडर करते हैं. लेकिन हियर दे हैव मेंशन्ड कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हम लोग क्या करेंगे? आर को आर बाय 2 से रिप्लेस करेंगे और एन इज इक्वल टू 2 इंटू एन हो जाएगा. ओके, फाइंड द अमाउंट एक्यूमुलेटेड फॉर 2 years. सो हियर व्हाट दे हैव गिवन. क्वेश्चन नंबर 3, सी क्या है? C is equal to rupees 24,000. ओके, और ईयर क्या है? N को हम लोग कैसे रिप्लेस करते हैं? 2 into N. सो 2 into 2 that is 4. और R को हम लोग कैसे रिप्लेस करते हैं? R by 100. ओके, R को हम लोग कैसे रिप्लेस करते हैं? R by 100. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? R is equal to कितना दिया है? 6% दिया है ना, तो 6 upon 100. सॉरी, आर कितना दिया है? एक मिनट. आर इज, लेट मी रीड, 12% पर एनम. सो आर को हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे? आर बाय 2. आर इज गिवन एज 12%. सो 12 by 2 दैट इज 6%. समझा? दैट इज 6%. हमको क्या निकालना है? एक्यूमुलेटेड वैल्यू. एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब क्या होगा? ए इज इक्वल टू सी बाय आई in bracket 1 plus I whole raised to power n minus 1. और क्या गिवन दिया है उन्होंने? 1.06 whole raised to power 4 कितना है? 1.2625. हियर वी और मेंशन किया है कि कौन सा है, कौन सा एन्युटी है मेंशन किया है. सो वी विल ऑलवेज कंसीडर एज इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी. सो सी इज योर 24,000. आई हैव नॉट कैलकुलेटेड. I is equal to R by 100. Then which R we will consider? This 6%. 6 upon 100 that is 0.06. Okay, I कितना आ गया तुम्हारा? 0.06. So 0.06 1 plus 0.06 whole raised to power n is your 4 minus 1. So A is equal to 24000 into 100 whole divided by 6. 1.06 whole raised to power 4 minus 1. So A is equal to 6 1 6, 6 4 24. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So 4 lakh into यहाँ पे क्या आएगा? 1.2625 minus 1. So A is equal to 4 lakh into 0.2625. चलो कितना आया? 1,05,000 आया ना? 1,05,000 आया रुपीज. Yes, ma'am. यहाँ पे देखो कितना दिया है? 10,50,000. आंसर क्या है तुम्हारा? रॉन्ग है. ओके, ये थर्ड भी तुम्हारा आंसर रॉन्ग दिया है बुक में. ठीक है, चलो क्वेश्चन 4. फाइंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 1 year ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट इन विच. एन्युटी इमीडिएट यहाँ पे मेंशन किया है. इन विच रुपीज 10,000 आर इन्वेस्टेड एवरी ईयर. सो योर सी इज रुपीज 10,000 इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर. एवरी क्वार्टर मतलब जो मैंने अभी पॉइंट्स लिखवा के दिए थे, तो आर हम लोग किससे करेंगे रिप्लेस? एवरी क्वार्टर है तो आर इज रिप्लेस बाय आर बाय 4 होगा क्या?
Yes or no? Yes. R is replaced by R. R is replaced by R by 4 and N is replaced by N into 4 या 4N, whatever you want to consider. ठीक है, हमको क्या निकालना है? accumulated value. निकाल के बताओगे मुझे? Yes, ma'am. हाँ, चलो फाइंड आउट करो. C is rupees 10,000. Okay, N is equal to 4 into N. That is 4 into 1 is equal to 4. R is equal to 16% by 4. That is 4%. So I is equal to R by 100. That is 4 by 100. मतलब 0.04. 42475. Is it coming 42475? Accumulated value 42475. Yes, ma'am. Okay. यहाँ पे है क्या 42475? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये भी रॉन्ग है. ओके, ये भी रॉन्ग दिया है उन्होंने. ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 आया क्या सबका? 42475 या shall I solve it? आ गया मैम. Okay, चलो good. Now question 5. What is question 5? Find the present value of an annuity. Present value मतलब P का फॉर्मूला कौन सा है? Of an annuity immediate कौन सा फॉर्मूला है उसका? P is equal to C by I 1 minus 1 plus I whole raised to power minus n. ओके, प्रेजेंट वैल्यू में जो n रहता है वो माइनस n रहता है और उसकी भी वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट ऑफ रुपीज 36,000 पर मंथ. मतलब सी क्या है तुम्हारा? 36,000. एन है 3 इयर्स और आर है तुम्हारा 9% पर एनम. चलो निकालो क्वेश्चन 5. यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स. सी इज इक्वल टू आर कितना है? 36,000. ओके, एन इज योर 3 years and they have mentioned that it is immediate annuity एंड कंपाउंडेड एनुअली बोला है और आर क्या है तुम्हारा? 9% पर एनम. सो आई इज इक्वल टू आर बाय 100. दैट इज 9 by 100 मतलब 0.09. और पी इज इक्वल टू क्या है? सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 minus 1 plus आई 1 minus 1 plus I whole raised to power minus n. चलो निकालो. P is equal to 36,000 whole divided by 0.09. 1 minus 1 plus 1 plus क्या बात है, आज तो बहुत बड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस आ रहे हैं. 91120 आ रहा है आंसर. 91120 रुपीज प्रेजेंट वैल्यू. वेरी गुड प्रांजल. आई क्या है? 0.09 रेज़ टू पावर माइनस 3 आया क्या? 91120 91,120 आया. Ma'am, cell calculator. ओके, गिवन क्या है तुम्हारा? 1.09. 1.09 रेज़ टू पावर माइनस 3 की वैल्यू कितनी है? 0.7722.
6 start करूं. 6 is also calculate the present value. Please calculate 6. 6 is also calculate the present value compounded annually. Start with 6 if you are done with 5. Huh? Fifth का आया क्या 91,120? Yes, ma'am. Okay. Now sixth. Sixth is 1,83,555 आ रहा है सबका. 6 का आंसर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Question 7. A lady plans to save for her daughter's marriage. She wishes to accumulate a sum of rupees 4,64,100 at the end of 4 years. तो ये हमको क्या दिया है? She wishes to A is accumulate a given. sum. A is given. Yes, A has given at the end of 4 years. So N is your 4 years. What amount should she invest every year if she gets an interest? So we have to calculate C. Annuity हमको find out करना है of 10% per annum compounded annually. तो ये immediate annuity का है. So A is equal to C by I 1 plus I whole raised to power N minus 1. Let's do it. Come on. लिखो जो given दिया है. Your A is 4,64,100. Okay, N is your 4 years and R is your 10%. So I is equal to R upon 100. That is 10 upon 100. So ये कितना आएगा 0.1. So A is equal to C by I 1 plus N 1 plus I whole raised to power N minus 1. और कुछ given दिया होगा. This one is your 7. और कुछ given दिया होगा कि 1 plus 1 whole raised to power 4 is your 1.4641.
Okay, so A is 4,64,100 is equal to C upon 0.1 in bracket 1.1. ये डायरेक्ट ब्रैकेट ये लिख देती हूँ मैं 1.4641 minus 1. Okay, so 464,100 into 0.1 is equal to 0.4641 into C. So C is equal to 46410. ये 0.1 है तो ये हट जाएगा, ये 10 और 0.4641. तो C is equal to कितना आ गया तुम्हारा 1 लाख, क्योंकि अगर मैं 46410 into 1,2,3,4 डिवाइडेड बाय 4,641 अगर करूंगी तो C इज इक्वल टू 4,641 1,2,3,4 1,2,3,4 डिवाइडेड बाय 4,641 5. ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा 1,2,3,4,5. सो शी मस्ट इन्वेस्ट 1 लाख every year. She must invest 1 lakh every year. Okay. Done. Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. क्वेश्चन 8. आंसर राइट है क्या क्वेश्चन नंबर 8 का? क्वेश्चन नंबर 7 किया था. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. A person wants to create a fund of rupees 6,96,150 after 4 years at the time of his retirement. He decides to invest a fixed amount at the end of every year in a bank that offers him interest of 10% per annum compounded annually. What amount should he invest every year? मतलब यहाँ पे भी सेम है, हमको एन्युटी निकालनी है और ए दिया है कितना 6,96,150. So this question is similar to 7. चलो solve it. क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो. Tomorrow I am going to start with differentiation. So please don't miss tomorrow's class from 12 to 1:30. 8th answer is 1,50,000. Ma'am, still calculate. Okay. Yes, 1,50,000. वन लाख 50,000 आया सबका? Now last Yes, ma'am. question, Yes, ma'am. then we will finish this class. Find the rate of interest compounded annually. Rate of interest मतलब बाहर निकालना है. If the annuity immediate दिया है at rupees 20,000 per year, amount to rupees 2,60,000 in 3 years. तो ये A है, तुम्हारा ये C है, ये तुम्हारा N है, हमको I निकालना है. चलो क्वेश्चन 9.
Okay, C is rupees 20,000. A is equal to rupees at 2,60,000. Rate of interest we have to find out, and N is your 3 years. Okay, so A is equal to C by I in bracket 1 plus I whole raised to power cube minus 1. Okay, A is your 2,60,000 is equal to 20,000 upon I, 20,000 upon I, 1 plus I whole raised to power 3 minus 1. Okay, 1 2 3 1 2 3, ये भी गया, ये भी गया, 2 1 जा 2 13 जा. Okay, so 13 is equal to 13I होगा ये. 13 is equal to ये क्या रहेगा तुम्हारा 1 plus I whole cube minus 1 whole upon I. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 13 ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया है. ठीक है, ये थोड़ा लेंदी है तो हम लोग कल करें इसको. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. हाँ, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन जाएगा और 5-10 मिनट्स लगेंगे इसको. इज दैट ओके? Yes, ma'am. फिर आए निगेटिव आएगा, फिर निगेटिव को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते तो हम लोग को पॉजिटिव कंसिडर करना होगा. चलेगा? Yes, ओके, ma'am. टुमारो कितने क्वेश्चंस बाकी है अभी? और 16 है शायद से ये. 15 16. ओके, कल डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट करूंगी मैं. ओके, ठीक है, Yes, ma'am. चलो बाय बाय, गुड डे. Thank you, ma'am. बाय. आदित्य, हाँ यस मैम. मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी आपको. ओके, हाँ ठीक है.